आज हम श्रीमद् भागवतम का पेज 28 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि रामानुजाचार्य के साथ में बातचीत हो रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु का, और उन्होंने यही कंक्लूड किया कि भक्तजनों के साथ में समय बिताना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और श्री दामोदर गोस्वामी जी ने उन लोगों का कन्वर्सेशन सब रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पे ब्रीफ में बताया गया है, टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु का उसमें डिटेलिंग में बताया गया है। The Lord extensively travelled all over the southern parts of India. The great saint of Maharashtra, known as Saint Tukarama, was also initiated by the Lord. Saint Tukaram, after initiation by the Lord, मतलब चैतन्य महाप्रभु, over-flooded the whole of the Maharashtra province with the Sankirtana movement, and the transcendental flow is still rolling on in the southwestern part of the great Indian peninsula. The Lord excavated from South India two very important old literatures named as Brahma Samhita and Krishna Karnamrita. Okay. And these two valuable books are authorized studies of the person in the devotional line. The Lord then returned to Puri after his South Indian tour. On his return to Puri, all the anxious devotees of the Lord got back in their life, and the Lord remained where. On his return to Puri, all the anxious devotees of the Lord got back their life, and the Lord remained there with continued pastimes of his transcendental realizations. The most important incident during that time was his granting audience to King Prataparudra. King Prataparudra was great devotee of the Lord, and he considered himself to be one of the servants of the Lord entrusted with sweeping the temple. This submissive attitude of the king was very much appreciated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट उस टाइम पे था कि हिज ग्रांटिंग ऑडियंस टू किंग प्रतापरुद्र, मतलब प्रतापरुद्र से मिलना। किंग प्रतापरुद्र जो थे वो ग्रेट डिवोटी थे भगवान चैतन्य के, एंड ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। वो खुद को ना चैतन्य महाप्रभु के दास मानते थे, एंड वो उस टेम्पल को ना क्लीन करते थे जो चैतन्य महाप्रभु के वजह से वहाँ पर स्थापित हुआ था सम पॉसिबली। देखते हैं कौन सा टेम्पल है, अगर मेंशन है तो बता दूंगी। दिस सबमिसिव एटीट्यूड, जो ये जो डाउन टू अर्थ नेचर था, वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा कि इतना ज़्यादा महान वो बन गया है राजा, उसके बाद भी उसके अंदर नहीं है किसी तरीके का घमंड। द किंग रिक्वेस्टेड बोथ भट्टाचार्य एंड राया टू अरेंज हिज मीटिंग विद द लॉर्ड। तो किंग प्रतापरुद्र ने बोला भट्टाचार्य पंडित को रामा कौन सा नाम था यहाँ पे, रामानंद राया जी से कि मेरा जो है मीटिंग आप ये करो, क्या बोलते चैतन्य महाप्रभु से प्लीज़ फिक्स कर दो। When however the Lord was petitioned by his two stalwart devotees, they flatly refused to grant the request. तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। He flatly एकदम फ्लैट तरीके से रिफ्यूज टू ग्रांट द रिक्वेस्ट, इवन दो इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय पर्सनल एसोसिएट्स लाइक रामानंद राय एंड सर्वभौमा भट्टाचार्य। द लॉर्ड maintained that it is dangerous for a sannyasi to be intimate touch with worldly money conscious men and with women. The Lord was an ideal sannyasi. No woman could approach the Lord even to offer respects. Women's seats were accommodated far away from the Lord. As an ideal teacher and acharya, he was very strict in the routine work of a sannyasi. Apart from being a divine incarnation, the Lord was an ideal character as a human being. तो जो पैसे से डील करने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्ल्डली ट्रेजर्स को, जैसे रामानंद राय जी जो थे वो गवर्नमेंट का ऑफिसर थे या काम करते थे, वो एक सिंपल सा जॉब करते थे, बट उनके अंदर एक रियलाइज सोल की एनर्जी थी। बट जो राजा है वो उनके अंदर कितनी रिचेस है, कितना ज़्यादा वर्ल्डली चीज़ें था। ऐसे लोगों के साथ या उनके जो सभा के लोग होंगे, रानी माँ या जो भी होंगे, जिनमें फीमेल्स भी होंगे, तो उनसे वो नहीं मिल सकते, दूर से मिलते हैं। No woman could approach the Lord even to offer respect. Apart from being a divine incarnation, the Lord was an ideal character as a human being. His behavior with other persons was also above suspicion. In his dealing as Acharya, he was harder than the thunderbolt and softer than the rose. तो जब उनको आचार्यों से डील करते थे, जब गुस्से में आते थे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होते थे, जब सॉफ्ट होते थे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते थे। On one of his associates, Junior Haridas, committed a great mistake by lustfully glancing at a young woman. एक महिला के प्रति उसने बहुत लस्टफुली देखा।
The Lord as super soul could detect this lust in the mind of Junior Haridas, who was at once banished from the Lord's association and was never accepted again. Even though the Lord was implored to excuse Haridas for the mistake, Junior Haridas afterwards committed suicide due to being disassociated from the Lord. मतलब तब बाद में शायद लॉर्ड ने सोचा था वॉज इम्प्लोर टू एक्सक्यूज़, मतलब उनको इम्प्लोर किया गया था, उनको बोला गया था कि आप प्लीज़ इसको जो है ना माफ़ कर दो, लेकिन बाद में इन्होंने सुइसाइड अटेम्प्ट कर लिया था क्योंकि उनको संगति से दूर कर दिया गया था. एंड द न्यूज़ ऑफ सुइसाइड वॉज ड्यूली रिलेटेड टू द लॉर्ड. Even at the time, the Lord was not forgetful of the offense, and he said that Haridas had rightly met with the proper punishment. तो उन्होंने सोचा कि हरिदास के साथ जो भी हुआ है, जूनियर हरिदास के साथ, छोटे हरिदास के साथ, वो सही हुआ है, उसके कर्म के हिसाब से उसको यही फल मिलना चाहिए था. ठीक है. सो अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपको गलत फल ही मिलेगा, मतलब सही फल मिलेगा, उस गलत कर्म का वैसा ही फल मिलेगा. On the principles of the renounced order of life and discipline, the Lord knew no compromise, and therefore, even though he knew that the king was a grand devotee, he refused to see the king, only because the king was a dollar and cent man. By this example, the Lord wanted to emphasize the proper behavior of a transcendentalist. जो भक्त होंगे, राजा भक्त था, बट वो हमेशा डॉलर, सेंट एंड पैसे, शोहरत, इन सब से डील करता था, तो वो ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे. बाय द इस एग्जांपल से वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जो भक्त होते हैं वो कैसे होते थे. वो एक ऐसा ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे जिनको महिलाएं और पैसे अच्छे नहीं लगते थे. ही मस्ट ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम सच इंटीमेट रिलेशंस. द किंग वॉज हाउएवर फेवर्ड बाय द लॉर्ड बाय द एक्सपर्ट अरेंजमेंट ऑफ अ डिवोटी. लेकिन किंग को जो है बाद में चैतन्य महाप्रभु के साथ में एक एक्सपर्ट अरेंजमेंट कर दिया गया था डिवोटीज़ के द्वारा. दिस मीन्स दैट द बिलवेड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन फेवर अ न्यू फाइट. मतलब भगवान अगर नहीं माने तो डिवोटीज़, भक्तों के आशीर्वाद से चीज़ें बन सकती है. मोर लिबरली देन द लॉर्ड. प्योर डिवोटीज़ देयर पर्सन, मतलब भक्तों के आशीर्वाद है, भक्तों के संगति से आपके काम बन जाएंगे. जो थोड़ी देर पहले वो राया जी से बात करते हुए डिस्कस किया था कि प्योर डिवोटीज़ जो है, देयरफॉर नेवर कमिट एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ अनदर प्योर डिवोटी. जो प्योर डिवोटी होते हैं वो दूसरे प्योर डिवोटी के आगे कभी कुछ गलत होते हुए देख ही नहीं सकते, उनके कष्ट को सह नहीं सकता. एन ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इज समटाइम्स excused by the merciful Lord, but an offense at the feet of a devotee is very dangerous for one who actually wants to make progress in devotional service. तो जो ईश्वर के चरणों में जो क्या बोलते हैं ना, an offense at the lotus feet of Lord is sometimes excused by merciful Lord, but an offense at the lotus feet of devotee is very dangerous for one who actually wants to make progress in devotional service. तो भक्त इतने ज़्यादा महान होते हैं, अगर आप भगवान के चरण में जाके, भगवान के पास में जाके कुछ गलती करते हो तो भगवान माफ़ कर देंगे. लेकिन अगर भगवान के किसी भक्त के आगे आप अगर कुछ गलत करते हो तो उस चीज़ का कर्म बहुत ज़्यादा लग जाते हैं. भगवान स्वयं उस चीज़ का माफ़ नहीं करते. अगर आप भगवान के दो बातें बोल करके फिर माफ़ी मांगते हो तो शायद आपको माफ़ी मिल जाएगा, लेकिन भक्त को अगर कष्ट दोगे तो फिर नहीं मिलेगा. क्योंकि भक्त जो है वो आपको बहुत सारी, मतलब वो बहुत पवित्र होते हैं, बहुत ज़्यादा वो सेल्फलेस होते हैं. ठीक है. और भगवान अपने भक्तों के आगे बहुत ज़्यादा वो भी हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं. ठीक है. सो मतलब वीक इन द सेंस, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भक्तों से, तो उनके साथ में कुछ भी बुरा हो ये पसंद नहीं करते. एंड यहाँ पे जैसे मेंशन किया कि जो चीज़ भगवान नहीं मानेंगे वो भक्त मना सकते हैं, तो उसी भक्त को अगर कष्ट मिले तो भगवान उस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते. आज यहीं तक करेंगे. As long as the Lord remained at Puri, thousands of his devotees used to come to see him during the रथ यात्रा. यहाँ से रथ यात्रा फेस्टिवल, लॉर्ड जगन्नाथ, ये सब कुछ डिटेलिंग ना हम यहाँ से कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे. चलिए, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.